Okay. Good morning, class, once again. Today we will be discussing about the law of demand. Law of demand is a very, very popular topic in the study of microeconomics. Before going into the definition of what is law of demand, there are two things which need to be cleared. And they are, the first word is demand, and then there is another word known as quantity demanded. So it's very necessary to be very, very clear that is demand and quantity demanded one and the same thing, or are they two different concepts? See, demand and quantity demanded are entirely two different things. Though they are very much related to each other, they have similar features, but yet they are different. Let's look at them one by one. What is demand? In economic terms, demand is that quantity of good which consumers have the willingness as well as the ability to buy at various prices during a given period of time. So the two important words to note down here is the willingness and the ability. Sum total of all the quantities which are bought, will not say which are bought, but which the people have the ability to buy as well as they have the willingness to buy. The sum total of those quantities and which are purchased at different prices, collectively known as demand. So demand is not a one-time phenomena. It happens over a period of time. So all the prices and all the corresponding quantities purchased by the consumers, if we sum total all of them, the final value we arrive at is known as demand. Whereas the quantity demanded is slightly different from demand. Quantity demanded refers to that exact quantity or the precise unit of a good or a service which is demanded by the consumer at a particular price. Let's say the price is 5 rupees, and at 5 rupees, people are demanding 10 units of, let's say, 10 units of bulb. People are saying that we are ready to purchase 10 units of bulb at a price of rupees 5. So these 10 unit represents quantity demanded. It is quantity demand is not sum total. It is the actual amount of number of goods that the consumer are ready to buy at a particular price. So every price has a corresponding quantity demanded to it. So these two, this is the prime difference between demand and quantity demanded. Quantity demanded is a very, very precise, exact unit, whereas demanded is sum total of all the quantities bought by the consumer at a particular price, not at a particular price, but yes, at a different prices, the sum total of all the quantities bought. So that is known as demand. I hope the difference between demand and quantity demanded is clear. Let's move forward and discuss that at first place, why are goods demanded? Why do we demand goods? See, people demand goods and services because they have the capacity to satisfy our wants. These goods and services which we are demanding, these goods and services have the capacity to satisfy our different wants. And the capacity to satisfy different want is known as utility. So we can simply say that we demand goods, or we can say that goods are demanded because they possess utility. Or utility ko we can call benefit also, we can call satisfaction also. So because the goods and services possess utility, they have the capacity to satisfy our wants, they offer a lot of benefits to us. That is why we as a consumer demand goods and services also. So now let's see that what does law of demand states. See, law of demand was given by Professor Alfred Marshall, and law of demand states that other things remaining same, higher the price of a commodity, smaller is the quantity demanded, and lower the price of a commodity, larger is the quantity demanded. Now, if you closely look at the definition of law of demand, you will notice that it has three parts.
The first part is other things remaining same. Let's understand it part by part. Other things remaining same means there are two words which can be used for this phrase, other things remaining same, that is known as ceteris paribus. Ceteris paribus basically means that all the other factors which can affect the demand of a commodity are same. Now, usually the factors, other factors which affect the demand of a quantity are income of a consumer, taste and preferences, prices of substitute goods, prices of complementary goods, change in fashion. So these are the few other factors which also have the ability to influence the demand. But when we are explaining the definition of law of demand, we assume these other factors to remain constant. Means there is no change in these factors. These factors were exactly as they were before. Income भी उतनी ही है, prices of the supplementary and complementary good भी उतने ही हैं. There is no change in taste and preferences. All other things are same as they were before. जब सब चीज़ों को हम same assume कर लेते हैं, and then we see कि how the quantity demanded is changing in response to the change in price of the commodity, then this is known as the law of demand. लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जैसे जैसे प्राइस किसी कमोडिटी के बढ़ते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड उसकी कम होती चली जाती है, और जैसे जैसे प्राइसेस कमोडिटी के कम होते हैं, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होने लग जाती है. सो देयर इज, if prices are going down, quantity increases. If prices are going up, quantity decreasing. So opposite direction में move करते हैं. Prices and the quantity demanded move in opposite direction. Since they are moving in opposite direction, so their relationship is known as inverse relationship. There is indirect relationship और there is inverse relationship. मतलब एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल की वैल्यू कम हो रही है. So this is the genesis of law of demand. I'm repeating it once again. Law of demand states other things remaining same, higher the price of a commodity, smaller is the quantity demanded, and lower the price of a commodity, larger will be the quantity demanded. And the word which we have used for other things remaining same or other things remaining constant is ceteris paribus. Okay, now let's, like every law of demand also has certain assumptions. Let's discuss the assumptions of law of demand. These 6 which you can see on your screen are the assumptions to the law of demand. The first thing which is assumed is there is no change in the income. Income here means the income of the consumer who are buying the product. So there is no change in the income. Income or the money which the consumer have is exactly same what he or she was having before the change in the prices of the good. So income वहीं की वहीं है, कोई change नहीं है. Secondly, there is no change in size and composition of population. ना तो population का size बढ़ा है, ना population की composition बढ़ी है. Population here does not mean the literal population, पूरी country की या पूरे world की population की बात नहीं कर रहे हैं. Population here means the group of people who are buying a particular product. जैसे let's say कार खरीदने वाले जितने भी consumers हैं, जितने भी consumers हैं या जितने भी people हैं जो कार खरीद रहे हैं, तो उन सबको हम collectively population of car कह देंगे. So पॉपुलेशन यहाँ पे मतलब जो ग्रुप ऑफ पीपल उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं. तो हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं लॉ ऑफ डिमांड में दैट देयर इज नो चेंज इन साइज एंड देयर इज नो चेंज इन कॉम्पोजिशन. मींस जितने लोग पहले डिमांड करते थे उतने ही अभी भी कर रहे हैं, और जिस नेचर के लोग पहले डिमांड करते थे उतने ही अभी करें. कंपोजिशन मतलब यंग, ओल्ड, स्पोर्ट्स कार की डिमांड ज्यादा है या आपकी नॉर्मल डोमेस्टिक कार की डिमांड ज्यादा है, सेडान की डिमांड ज्यादा है, हैचबैक की डिमांड ज्यादा है. जितनी पहले डिमांड थी उतनी मतलब उतनी ही, जितने लोग पहले इन चीजों को खरीदते थे उतने ही खरीद रहे हैं. कोई भी ड्रास्टिक चेंज नहीं आया है, ना तो कंपोजिशन में और ना साइज में. सो दिस इज अ सेकेंड एग्जम्पशन. थर्ड एग्जम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड इज that there is no change in prices of related goods. Now when we talk about related goods, there are two types of related goods.
First one is called substitute good and the second one is called or complementary good. सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होती हैं जिन्हें हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं. जैसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड इज टी एंड कॉफी. If a person is indifferent, does not have any taste preference, then he is indifferent to having a tea or coffee. But tea है तो tea पी लेंगे, tea नहीं है तो coffee पी लेंगे. So goods, substitute goods, I am again repeating, are those goods which can be used in place of each other. Other example of substitute goods could be जैसे आपका टी और कॉफी हो गया, लाइकवाइज आपका सब्स्टिट्यूट गुड हो सकते हैं दूसरे. यू आर इनडिफरेंट टू राइस एंड व्हीट. आप राइस भी कंज्यूम कर सकते हो, आप व्हीट भी कंज्यूम कर सकते हो. अगर क्लास आपको ज्वाइन करनी है तो जूम एंड गूगल मीट आर ऑल्सो सब्स्टिट्यूट प्लेटफॉर्म्स. You can have your class at Google Meet also, you can have it on Zoom also. So these are substitute platforms. So जब हम एक गुड को उसकी जगह दूसरे को यूज कर सकते हैं उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड. अनदर कैटेगरी ऑफ गुड होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो हैं जो दोनों साथ में यूज की जाती है. जैसे ब्लैक बोर्ड चॉक. विदाउट चॉक ब्लैक बोर्ड इज ऑफ नो यूज, विदाउट ब्लैक बोर्ड चॉक इज ऑफ नो यूज. So blackboard and chalk are complementary good. Likewise, आपके shoes and socks are complementary goods. Your badminton racket and the shuttle is complementary good. So those goods which are used in pair, which are used together, those are known as complementary goods. I hope the difference between substitute good and the complementary good is clear. Now we are assuming here that there is no change in price of related goods. मतलब कि ना तो substitute goods के prices में change है, ना complementary goods के prices में change है. जो उनके prices पहले थे वो ही हैं अभी भी. So this is the third assumption of law of demand. Fourth assumption of law of demand says that there is no change in consumer taste and preferences. Means जो लोग पहले चाय पीते थे वो अभी भी चाय ले रहे हैं. जो लोग पहले होंडा कार प्रेफर करते थे ओवर हुंडई कार, वो अभी भी वही प्रेफर कर रहे हैं. मीन्स देयर इज नो चेंज इन टेस्ट और प्रेफरेंस. इट इज एज्यूम देयर इज नो चेंज बिकॉज अगर टेस्ट और प्रेफरेंस में चेंज आता है तो डिमांड की ये जो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन है ये चेंज हो जाती है. जैसे मान के चलो कि ऑल ऑफ अ सडन होंडा कार्स के प्रेफरेंस बढ़ गई लोगों में, तो ऑब्वियसली जो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन है ऑफ कार बाइंग पीपल उसमें चेंज आ जाएगा. बट हम एज्यूम कर रहे हैं कि कोई चेंज नहीं है. जो लोगों की टेस्ट पहले थे वही हैं, जो लोगों की प्रेफरेंसेस पहले थी वो सेम वैसी हैं. तो दिस इज द फोर्थ assumption. Fifth assumption of law of demand is no expectation of a price change in future. This is very important assumption. See, whenever the normal people expect the prices to change in future, we tend to postpone our buying in the present time. अगर मुझे लग रहा है कि कल इस प्राइस के गुड कम हो जाएंगे या नेक्स्ट मंथ ये प्राइस जो है वो डिस्काउंटेड रेट्स पे ये गुड डिस्काउंटेड रेट पे मिलने लग जाएगी, तो मैं आज गुड को ना खरीद के उसको पोस्टपोन कर दूंगी कि मैं नेक्स्ट मंथ खरीदूं. और सिमिलरली अगर मुझे एक्सपेक्टेशन है कि अगले हफ्ते या अगले महीने गुड के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, रिवाइज होने वाले हैं, तो मैं आज की डेट पे उस गुड को ज्यादा खरीद लूंगी क्योंकि अभी तो वो लो प्राइस पे मिल रही है. बट एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में हम एज्यूम करते हैं कि कोई प्राइस चेंज नहीं होने वाला, फ्यूचर में भी वही प्राइसेस रहेंगे जो अभी हैं. देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी अप मूवमेंट इन द प्राइस, नॉट देयर गोइंग टू बी एनी डाउनवर्ड मूवमेंट इन द प्राइसेस. सो थिंग्स आर गोइंग टू बी प्रिटी सेम व्हाट दे आर राइट नाउ. And the last assumption of law of demand is no change in climatic conditions. Many a times because of climatic condition also the demand for the goods change, especially in case of seasonal goods. Winters आती हैं तो woolens की demand बढ़ जाती है, summers आते हैं तो cotton clothes की demands बढ़ जाती है. But हम यहाँ पे जब law of demand explain करते हैं या समझते हैं तो assume करते हैं कि climatic condition same है, कोई change नहीं आने वाला. अगर हम कूलर्स की डिमांड चेक कर रहे हैं या एनालाइज कर रहे हैं तो मान के चल रहे हैं कि कूलर की डिमांड उतनी ही रहने वाली है जितनी अभी है, आगे भी कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि कोई क्लाइमेटिक चेंज नहीं होगा, गर्मियां ही कंटिन्यू रहने वाली हैं, तो कूलर की डिमांड जितनी अभी है वही आगे रहने वाली है. सो दीज आर द बेसिक assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमांड.
So as you can all see that so many other, see all these factors which we are assuming to be not changing, these all are the part of other things being equal. हमने यहाँ लॉ ऑफ डिमांड में बोला ना डेफिनेशन में, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम. सो दीज ऑल, इनकम, composition of population, related goods, trace and preference, price change, climatic condition, these are all those other goods which are referred to over here. ये जो other things की बात करी है सेम, यही हैं वो सारी other things जो सेम मान के चल रहे हैं. सो हम मानते हैं कि अदर थिंग्स सेम रहेंगी. जब प्राइस अप जाएगा किसी भी गुड का तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी. अगर किसी गुड का प्राइस फॉल होगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा हो जाएगी. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एंड द assumptions of law of demand. But you know children, there is a very interesting thing. Law of demand is not something which is always operational. There are certain cases and there are certain situations in which law of demand fails. Law of demand fails मतलब law of demand work नहीं करता है. Law of demand work नहीं करता है क्या मतलब कि ये law usually law of demand कहता है prices up, quantity fall, prices down, quantity rise. But ये जो situations हैं, 5 situations which we are about to discuss now, these are called as exceptions to law of demand. These are those situations in which प्राइस अप होने पे क्वांटिटी डिमांडेड फॉल नहीं होगी बल्कि क्वांटिटी डिमांडेड भी अप जाएगी. और लाइकवाइज अगर प्राइसेस डाउन जा रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी. तो ये 5 केसेस हैं, 5 सिचुएशंस हैं जिनमें लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करता. लेट्स लुक एट देम वन बाय वन इन डिटेल. The first one is called your Giffen good. Giffen good is simply also known as inferior goods. So all those goods which are of very, very low quality, all those goods which are purchased just because they are affordable are known as Giffen good. Giffen goods वो हैं जिनकी क्वालिटी बहुत ही लो है, बहुत ही inferior goods हैं और लोग उनको सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उनकी पॉकेट अलाउ कर रही है कि वो उसको खरीद सके. बट अगर उनकी इनकम बढ़ती है, अगर लोगों की इनकम बढ़ती है, उनके पास और मनी आता है तो लोग गिफन गुड्स खरीदना बंद कर देंगे और वो नॉर्मल गुड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे. सो गिफन गुड्स वो हैं विच आर ऑफ वेरी वेरी इंफीरियर क्वालिटी. क्लियर? एग्जाम्पल ऑफ गिफन गुड्स में आपका आ सकता है, हम दे सकते हैं. देखो न्यूट्रिशन वैल्यू पे नहीं जाते, हम सिर्फ उसके मॉनेटरी वैल्यू को देखें तो व्हीट और बाजरा को अगर आप कंपेयर करते हो, बाजरा मच चीपर रेट पे मिल जाता है, व्हीट जो है वो हाई रेट पे मिलता है. तो बाजरा इज कंसिडर्ड टू बी अ इंफीरियर गुड इन कंपैरिजन टू व्हीट. I am again saying I am not comparing the wheat and bajra in terms of nutrition. Maybe the nutrition given by the bajra is equal or much more than wheat, but we are just comparing wheat and bajra in terms of the price. बाजरा सस्ते में मिलता है आपको, wheat महंगा मिलता है. तो जब inferior good वो है जिसमें law of demand कम नहीं करेगा. अगर बाजरा का प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड, अगर बाजरा का प्राइस कम हो रहा है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होनी चाहिए? आइडियली तो बढ़नी चाहिए. इफ द प्राइसेस ऑफ द बाजरा आर गोइंग डाउन, ideally the quantity demanded of bajra should increase, but यहाँ पे ऐसा नहीं होता है. अगर बाजरा के प्राइसेस डाउन जा रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड बाजरा की कम हो जाती है. क्यों कम हो जाती है इसे ध्यान से अब समझिए. जब लेट्स से कि बाजरा आपको 20 रुपीज पर केजी मिलता था, ठीक है, और व्हीट आपको मिलता था 30 रुपीज पर केजी. अब आपकी बाजरा के प्राइसेस हो गए डाउन, 20 से वो आ गया 5 रुपीज पर केजी पे. 20 से कितने पे आ गया? 5 रुपीज पर केजी पे. अगर लॉ ऑफ डिमांड वर्क कर रहा होता तो क्वांटिटी डिमांडेड बाजरा की बढ़ जानी चाहिए थी, बट नहीं बढ़ेगी. क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि ये जो 20 से 5 पे फॉल हुआ है तो 15 रुपीज का फायदा हो रहा है हमें. ये 15 रुपीज से हम इंफीरियर गुड बाजरा को खरीदने की बजाय हाफ केजी हम व्हीट खरीदना पसंद करेंगे.
हम कहेंगे कि अब मेरे को ये जो फायदा हो रहा है इससे मैं बाजरा ही क्यों खरीदूं, अब तो मैं आधा किलो फिर वीट ही क्यों ना खरीद लूं। सो जब भी इंफीरियर गुड्स के प्राइसेस डाउन होते हैं पीपल स्विच कर जाते हैं नॉर्मल गुड की तरफ। इसलिए नहीं स्विच कर रहे कि नॉर्मल गुड जो है वो उसका प्राइसेस डाउन हो गए हैं, इसलिए कर रहे हैं बिकॉज नॉर्मल गुड इन कंपैरिजन टू गिवन गुड हमें अब अफोर्डेबल लग रही है, जो पहले हमें अफोर्डेबल नहीं लग रही थी बट अब हमें वो अफोर्डेबल लग रही है क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर बढ़ गई है। सो ये गिवन गुड के केस में जब प्राइसेस डाउन जाएंगे तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो जाएगी बिकॉज पीपल विल शिफ्ट टू द नॉर्मल गुड। This is first exception. Second exception is Veblen goods. Veblen goods are those goods which are of very very high quality, which have इनको हम commonly luxury goods भी कहते हैं। Example आ सकते हैं इसमें आपके branded accessories, high brand watches, हाई एंड कार्स, मर्सिडीज हो गई, आपके BMW हो गई, बिल्कुल जो टॉप नॉच कार्स की कैटेगरी में आती हैं, जो सबसे महंगी कार्स हैं, डायमंड, ज्वेलरी, ये सब आपकी लग्जरी गुड्स के एग्जांपल्स हैं। अब लग्जरी गुड्स देखो, नॉर्मल गुड का प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, बट लग्जरी गुड के केस में जैसे जैसे उनके प्राइसेस बढ़ते हैं स्टेटस सिंबल जो उनके साथ अटैच्ड है वो भी बढ़ जाता है। So just because of the status symbol attached to those luxury goods or Veblen goods, instead of their prices going up, people go on demanding more and more and more. Another example I give you here of Veblen good, that is the every new version of iPhone. iPhone, after every some time, the iPhone comes with a new version, which is always sold at a higher price. And people replace their current version of iPhone with the higher newer version of iPhone and they happily give extra price, though there might be some minute changes. अभी के वर्जन में और जो न्यू लॉन्च हुआ है उसमें आपके स्लाइड चेंजेस होंगे, फिर भी हम hefty अमाउंट ऑफ मनी खर्च देते हैं नया लेटेस्ट आईफोन लेने के लिए। क्यों? बिकॉज उसके साथ स्टेटस सिंबल अटैच्ड है। सो ऐसी गुड्स जिनके प्राइस अब जाने पे भी उनकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है उन्हें हम बोलते हैं वेबलन गुड्स, यहाँ लग्जरी गुड्स और वेरी हाई क्वालिटी गुड्स। तो गिफन गुड और वेबलन गुड के केस में लॉ ऑफ डिमांड ऑपोजिट वर्क नहीं करता, उल्टा ऑपोजिट चलता है। थर्ड आर नेसेसरी गुड्स। अब नेसेसरी गुड्स की कैटेगरी वो गुड्स हैं जो हमारे लिए मैंडेटरी हैं, जिनके बिना हम रह नहीं सकते, विच आर वेरी वेरी नेसेसरी। जैसे सॉल्ट हो गया आपका, शुगर हो गया, क्लोथिंग हो गई, वाटर हो गया, all these are necessary goods, we cannot live without them. So in spite of the prices of necessary goods going up, we will go on demanding more and more. Necessary goods के अगर prices अब भी जा रहे हैं तब भी हमारे उनकी डिमांड बढ़ेगी। ये ऐसा नहीं है कि necessary good का प्राइस कम हो गया तो डिमांड कम हो जाएगी, वो बढ़ेगी। I'll give you another example here. 2-3 months back, when there was shortage of oxygen cylinders, at that time the oxygen cylinders have become necessary goods. जिन जो पेशेंट्स को प्रॉब्लम थी इन ऑक्सीजन से ऑक्सीजन इनहेल करने में, उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर उस टाइम पे नेसेसरी गुड था। तो इन स्पाइट ऑफ इट्स राइजिंग प्राइसेस, सिलेंडर्स के प्राइसेस बढ़ते जा रहे थे, यहाँ तक कि ब्लैक में बहुत महंगा भी मिल रहा था, तब भी पीपल वर बाइंग इट बिकॉज इट हैड बिकम नेसेसिटी एट दैट टाइम। सो ऐसा नहीं था कि जी महंगा हो गया सिलेंडर तो हम नहीं खरीदेंगे, जिसको जरूरत थी वो उसको हाई प्राइस पे भी परचेज कर रहा था। सो नेसेसरी गुड के केस में कभी भी लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता, वो हमेशा उसके प्राइसेस अप हो या डाउन हो, जितनी क्वांटिटी डिमांडेड है उतनी उसकी रहती ही रहती है। फोर्थ एक्सेप्शन जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता वो है एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज। अगर हमें लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस चेंज होने वाला है, अप होने वाला है, तो लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगा। जब भी एक्सपेक्टेशन हो कि फ्यूचर में प्राइस अप हो जाएगा या डाउन हो जाएगा, तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो उस एक्सपेक्टेशन के रिस्पॉन्स में रहेगी, ना कि उसके प्राइस अप या डाउन के रिस्पॉन्स में। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आज अनाउंस हो जाए कि नेक्स्ट मंथ पेट्रोल के प्राइसेस डबल होने वाले हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज, वैसे पेट्रोल तो खैर नेसेसरी गुड में आ जाएगा, लेट्स कीप इट टेक सम अदर एग्जांपल,
बिकॉज पेट्रोल तो नेसेसरी गुड है, उसके प्राइसेस अब भी होंगे, तो भी हमें अगर कार चलानी है तो पेट्रोल डलवाना ही डलवाना है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज में हम गुड्स ले लेते हैं, जैसे कि विंटर्स आने वाली हैं, तो यूजली सबके घर में हीटर्स होते हैं, रूम हीटर्स। लेट्स से कि आज तो रूम हीटर का प्राइस जो है वो 10,000 रुपीज पे अवेलेबल है। भी एक्सपेक्टेशन है कि जैसे ही विंटर्स का थोड़ा सा भी हिंट आएगा, जैसे ही विंटर स्टार्ट होंगी, रूम हीटर्स के प्राइसेस जो हैं वो 5 टाइम्स हो जाएंगे, 50,000 का मिलेगा। क्योंकि अब हमें एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइसेस 5 टाइम्स हो सकते हैं। अभी हमारे को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अभी करंटली लेट्स से कि न्यूज में आ गया जी, in the month of September the prices of the room heaters is going to hit 50,000. So आज की डेट में लोग, अभी जरूरत नहीं है, लेकिन आज की डेट में भी लोग जाके क्या करेंगे, रूम हीटर खरीदना स्टार्ट कर देंगे। So in today's date the demand for the room heater increase, उधर से प्राइस इंक्रीज होना है, इधर से डिमांड इंक्रीज हो रही है। अगेन लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड तो कहता है कि प्राइस इंक्रीज होना तो डिमांड कम हो जाएगी, बट यहाँ तो उल्टा केस हो रहा है कि प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं और डिमांड भी बढ़ रही है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये प्राइसेस फ्यूचर में चेंज होने वाले हैं। सो जब प्राइसेस फ्यूचर में चेंज होते हैं, उसकी करंट डिमांड, आज की प्रेजेंट डेट की डिमांड जो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली बढ़ जाती है, चेंज हो जाती है। अगर बढ़ रहे हैं तो बढ़ेगी, कम हो रही है तो कम हो जाएगी। लास्ट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग गुड इज हैप्चुअल गुड। हैप्चुअल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनकी हमें आदत पड़ जाती है। दीज आर दोज गुड्स विदाउट विच वी आर अनेबल टू, I'll not say we are unable to live, but we have got accustomed to them. जैसे अगर किसी को स्मोकिंग की हैबिट है तो उसके लिए सिगरेट इज एसेंशियल हैप्चुअल गुड। सिगरेट का प्राइस डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, 5 टाइम्स कर दो, द पर्सन विल बाय इट बिकॉज इट हैज बिकम अ हैप्चुअल गुड। सिमिलरली अगर किसी को डिओड्रेंट्स लगाने की हैबिट है, उसको एवरीडे डिओड्रेंट लगाना ही लगाना है, तो इन स्पाइट ऑफ डिओड्रेंट के प्राइसेस कम हो या डिओड्रेंट के प्राइसेस बढ़े, द पर्सन विल गो ऑन परचेजिंग इट। सो अगेन हैप्चुअल गुड्स के केस में भी आपका लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है। क्लियर? So these are the 5 situations or the 5 cases or 5 types of goods we can say where the law of demand does not work. देखिए लॉ ऑफ डिमांड अभी हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे कि जो लॉ ऑफ डिमांड की शेप, डिमांड कर्व की शेप होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। बट जो एक्सेप्शंस है उस केस में लॉ ऑफ डिमांड या तो बैकवर्ड स्लोपिंग हो जाता है, ये वाली शेप ले लेता है विच यू आर एबल टू सी ऑन योर स्क्रीन, बेंड हो जाता है बैकवर्ड, या फिर और इट समटाइम्स बिकम अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग मतलब एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि प्राइसेस P1 से P2 मूव हो रहे हैं, तो क्वांटिटी डिमांडेड X1 से X2 मूव हो रही है। सो ऐसे डिमांड कर्व को हम एक्सेप्शनल डिमांड कर्व कहते हैं। So in all the cases of exceptions of law of demand, the demand curve either assumes the shape of positive upward sloping or it sometimes take the shape of डाउनवर्ड स्लोपिंग, पीछे की तरफ बेंड हो जाता है, मतलब इनिशियली उसकी बढ़ रही है डिमांड एंड देन इट गोज डिक्रीजिंग। सो दिस वाज अबाउट द शेप ऑफ द डिमांड कर्व, सॉरी द एक्सेप्शंस एंड द शेप ऑफ डिमांड कर्व। ओके, 1 सेकेंड। द नेक्स्ट थिंग इज द डिमांड स्केड्यूल। Demand schedule क्या होता है? As you can see on your screen, there is a table given here in which the prices are shown in the first column and quantities are mentioned in the second column. So जब हम price और उसकी corresponding quantity को एक table की form में put कर देते हैं, then the tabular representation is known as demand schedule. What you are able to see on your screen right now is demand schedule. It always have 2 columns. One is the price column and other is the quantity column. You must be noticing one thing कि price जब $1 per gallon था, so quantity demanded was 800. Price increase होके 1.20 हुआ तो quantity demanded decrease हो गई 700. Price further increase होके 1.40 पे गया तो quantity demanded has gone down to 600. So we can clearly see from this table that as the prices are increasing, the quantity demanded is decreasing.
This is because of the inverse relationship. And this is the reason which this inverse relationship is the reason which gives the demand curve the shape of downward sloping. देखिए अब हम इन्हीं पॉइंट्स को जो टेबल के अंदर पॉइंट्स दे रखे हैं प्राइजेस और क्वांटिटी के, अगर हम इनको प्लॉट कर देते हैं on a sheet, on a graph, then by joining the points of intersection of price and quantity, we derive demand curve. अगर डिमांड स्केड्यूल टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है लॉ ऑफ डिमांड की, तो डिमांड कर्व ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है लॉ ऑफ डिमांड की. And when we draw these points on the graph and we draw a line connecting the points of intersection of price and quantity, जो ग्राफ ऑब्टेन होता है, जो लाइन ऑब्टेन्ड होती है, that is known as your demand curve. That is known as demand curve. Downward slope of demand curve shows the inverse relationship between the price and the quantity. Let me show you one more thing. One second. I'm showing you I'm showing you how the demand curve is plotted. See, on y-axis we have shown the prices. On the x-axis we have just put the quantity demanded. Okay? And these are the corresponding points. Let me write it clearly for you all. Prices are mentioned to be 5, 10, 15 and 20. And quantities are, let's say 100, 200, 300 and 400. So in our case, we are assuming that at a price of rupees 5, the quantity demanded is 400 units. Let's say किसी भी चीज का ले लेते हैं. Let's say the quantity demanded of shoes. So at a price of rupees, shoes ज़्यादा हो जाएगा. At a price of rupees 5, let's say the quantity demanded is or 400 units. When the prices rise to 10, the quantity demanded is 300 unit. It falls back, कम हो जाती है. ऐसे जब आपके प्राइसेस 15 होते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी हो गई है 200, और जब प्राइसेस फर्दर 20 पे चले गए तो क्वांटिटी डिमांडेड रह गई आपकी सिर्फ 100. सो ऐसे हम पहले प्राइसेस और क्वांटिटी के इंटरसेक्शन पे पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं. नाउ वी विल ड्रॉ अ लाइन जॉइनिंग दीज पॉइंट्स. This line is known as demand curve and it is named as DD. इसको हम DD बोलते हैं. So demand curve is that line or that curve which is obtained by joining the points of intersection of price and quantity. It is clear from the shape that it is a downward sloping curve. Demand curve की shape क्या है? Downward sloping है. Left से right की तरफ move हो रहा है, up से down जा रहा है. The shape of the demand curve is downward sloping. So this is how a demand curve is drawn. और ये इसी को अगर हम टेबल फॉर्म में लिख देंगे कि प्राइसेस का कॉलम एंड क्वांटिटी का कॉलम, देन इट इज नोन एज योर डिमांड schedule. Now I'll present the PPT again. One second. Yes. So this is the shape of the demand curve. As you can see on your screen also, it is downward sloping. When the prices were
When the price was PA, the quantity demanded was QA, and when the price was PB, the quantity demanded was QB. And by joining A and B, we have obtained the demand curve. अभी हमने यही draw किया था. Okay. Now the question arises that why the shape of demand curve is downward sloping? ये जो demand curve की shape है वो downward sloping क्यों है? क्या reason है? Commonly answer आता है क्योंकि मैम price और quantity के बीच के relationship inverse है, इसलिए demand curve downward sloping है. But in addition to this, there are 2-3 other reasons also. Genesis वही है कि inverse relationship है, but inverse relationship क्यों है? क्यों ऐसा होता है कि prices up हो रहे हैं तो quantity demanded कम हो रही है? This we will study now. See, this inverse relationship is basically because of diminishing marginal utility. Let's first understand the meaning of diminishing marginal utility. It has 3 words in it: diminishing, marginal, and utility. Diminishing means decrease हो रहा है, marginal means additional, and utility means satisfaction or benefit. So डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि जैसे ही हम एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करते हैं, सेटिस्फैक्शन जो हमें एडिशनल यूनिट से मिल रही है, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग. आई विल रिपीट अगेन. According to diminishing marginal utility, as we go on consuming additional units of a good, or if we go on buying additional unit of a commodity, the benefit we are getting from that additional unit, that next unit reduces, it goes down, वो कम हो जाता है. So we do not prefer to spend extra money on that extra unit. जैसे मुझे अभी 100 बॉक्सेस की जरूरत है और वो 15,000 पे अवेलेबल है. 15,000 रुपीज देके आई एम परचेजिंग 100 बॉक्सेस. बट मुझे अब नेक्स्ट मुझे जो 100 बॉक्सेस हैं वो खरीदने के लिए प्राइस फालतू देना पड़ेगा. बट जो नेक्स्ट 100 बॉक्सेस हैं उनकी मुझे अभी इतनी जरूरत नहीं है, तो मैं उनको अगर प्राइसेस बॉक्सेस के 15,000 से बढ़कर 20,000 हो जाते हैं, तो क्या मैं नेक्स्ट जो 100 बॉक्सेस हैं वो खरीदूंगी? नहीं खरीदूंगी. क्यों? क्योंकि मेरे को उनकी जरूरत नहीं है. ऐसा ही होता है क्वांटिटी डिमांडेड के साथ, कि जो हर एडिशनल यूनिट हम परचेज करते हैं ना, उससे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है या जो वो हमें बेनिफिट दे रहा है वो कम होता चला जाता है. इसलिए जब उस एडिशनल यूनिट का प्राइस बढ़ता है तो वी डू नॉट वांट टू बाय इट. इसलिए व्हेन द प्राइसेस गो अप, द क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूसेस. सो द मोस्ट बेनिफिट इज जनरेटेड. सबसे ज्यादा बेनिफिट हमें पहले यूनिट से मिलता है जो हम कंज्यूम करते हैं, बिकॉज इट सेटिस्फाइड आवर इमीडिएट नीड और डिजायर. इसके बाद के जितने भी यूनिट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, उनसे हमें बेनिफिट मिलता है, बट वो कम 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 होता चला जाता है. इसलिए हम उनके ऊपर हाई प्राइस नहीं देना चाहते. और एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब यूटिलिटी विच वी आर गेटिंग फ्रॉम दोज एडिशनल यूनिट बिकम जीरो, तब तक भी हम पैसा खर्चते हैं. बट इफ इट स्टार्ट्स बिकमिंग नेगेटिव, मतलब अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर हंग्री, यू आर हैविंग फर्स्ट चपाती, इट इज गिविंग यू it is satisfying your hunger, so you will have it. Let's say your mom forcefully gives you another chapati, तो आप वो भी खा लोगे कि चलो मन नहीं है लेकिन खा लेते हैं. अब मम्मा ने वो एक थर्ड चपाती भी प्लेट में रख दी, तो अब वो थर्ड चपाती से आपका पेट भर चुका है. यू वोंट बी एबल टू ईट इट, बिकॉज अगर आप उसको कंज्यूम करोगे तो रादर देन सेटिस्फाइंग योर हंगर यू विल एंड अप हैविंग अ स्टमक एक. सो एडिशनल यूनिट हमें सेटिस्फेक्शन देने की बजाय अब हार्म कर रहा है, तो हम उसको नहीं लेना चाहेंगे. दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल, अगेन आई एम सेइंग मार्जिनल मींस एडिशनल. हर एडिशनल यूनिट से जो फायदा मिलता है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है. इसलिए हम उसके ऊपर मनी या फिर टाइम या फिर उसको इस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं. यही रीजन है कि प्राइसेस अप होते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है. एंड दिस, क्योंकि प्राइस अप होंगे क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, तो डिमांड कर्व की शेप आपकी हो जाएगी
डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो एक तो रीजन हो गया डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सेकेंड रीजन है इनकम इफेक्ट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। इनकम इफेक्ट, सबसे पहले तो इनकम इफेक्ट में मैनी अ टाइम चिल्ड्रन कंफ्यूज कि इनकम इफेक्ट मतलब कि इनकम बढ़ रही है या कम हो रही है। नो, इनकम इफेक्ट हैज नथिंग टू डू विद योर रियल इनकम। जो इनकम आपके हाथ में है या जो मनी आपके पास एग्जिस्टिंग है, उस पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। इनकम इफेक्ट कहता है आपकी इनकम में कोई चेंज नहीं आ रहा, इनकम उतने की उतनी थी जितनी पहले है, आपके पास जो मनी था वो उतना ही है जितना पहले है, लेकिन आपकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है। अब ये परचेजिंग पावर कब बढ़ती है? लुक एट दिस एग्जांपल। I'll give you an example. Let's take an example of metro card. Let's say you spend 500 rupees to get the metro card recharge for 1 month. आप 500 रुपीज खर्चते हो तो आपका मेट्रो का कार्ड 1 मंथ के लिए रिचार्ज हो जाता है। Now let's say कि मेट्रो ने अपने प्राइजेस स्लैश कर दिए, मेट्रो के प्राइजेस जो हैं वो स्लैश हो गए। अब आपके 250 में 1 मंथ का कार्ड रिचार्ज हो जाता है, मतलब बिल्कुल 50% का डिस्काउंट दे दिया मेट्रो ने आपको। तो पहले आप 500 में 1 मंथ का रिचार्ज कर पा रहे थे, अब आप 500 में 2 मंथ्स का रिचार्ज कर पाओगे। सो ये 2 मंथ्स का रिचार्ज आप इसलिए नहीं कर पा रहे हो एट अ वन को क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई है या आपकी पॉकेट में ज्यादा मनी है। नो, मनी उतना ही है, 500 का 500 ही है, लेकिन क्योंकि प्राइजेस कम हो गए हैं तो आपकी उस 500 से परचेज करने की एबिलिटी बढ़ गई है, जिसे कहते हैं परचेजिंग पावर। द परचेजिंग पावर हैज इंक्रीज, यू आर मोर पावरफुल। पहले आप 1 मंथ का कार्ड का रिचार्ज कराते थे 1 500 के नोट से, आज आप उसी 500 के नोट से 2 मंथ्स का कार्ड रिचार्ज करा रहे हो। तो वैल्यू हैज गॉट इंक्रीज, योर परचेजिंग पावर हैज इंक्रीज। So when such a situation happens, this is known as income effect. So जब जब income effect आपकी आएगा, डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। Whenever the prices of a good fall, हम मान के चल रहे हैं कि इंडिविजुअल का बजट उतना ही है, उतनी कांस्टेंट उसकी इनकम है, he is in a position to buy more. सो जब प्राइसेस डाउन होते हैं हमारी पोजीशन बेटर हो जाती है चीजें खरीदने की, इसलिए हम ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करने लग जाते हैं। और उल्टा क्या होता है, जब प्राइसेस अप होते हैं तो हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, तो हम कम क्वांटिटी डिमांड करते हैं। सो दिस ऑल्सो इज वन ऑफ द रीजन बिहाइंड द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। सो फर्स्ट हो गया आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विच गिव्स द डिमांड कर्व डाउनवर्ड शेप, and second is income effect which gives the demand curve downward shape, and there is third and the last effect also which gives the downward shape to the demand curve. Now that is known as substitution effect. Substitution effect, sometime back I gave you example of tea and coffee. Tea and coffee are substitute goods. So जब आपकी substitute good का price fall होता है, let's take example of tea and coffee again. Let's say the prices of the tea have got prices, let's say tea was available at 50 rupees per kg and coffee was also available at 50 rupees per kg. टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, आप टी कंज्यूम करो या कॉफी कंज्यूम करो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। सो टी 50 पे है, कॉफी भी 50 पे है। अब लेट्स से सडनली टी के प्राइसेस 50 से कम होके 30 रुपीज हो गए, तो इससे कॉफी की डिमांड पे क्या इम्पैक्ट आएगा? कॉफी के प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आया, कॉफी के प्राइसेस पहले भी 50 थे, अब भी 50 हैं, बट कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। व्हाई? बिकॉज जब हम टी और कॉफी को कंपेयर कर रहे हैं एट देयर करंट प्राइस, टी इज अपीयरिंग टू बी चीपर एंड कॉफी इज अपीयरिंग टू बी कॉस्टलियर। कॉफी हमें कॉस्टली लग रही है और टी हमें चीप लग रही है, सस्ती लग रही है। तो हम टी बीइंग अवेलेबल एट अ लेसर प्राइस, वी विल गो ऑन बाइंग मोर टी एंड वी विल रिड्यूस द डिमांड ऑफ कॉफी। तो प्राइजेस इस केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्ले करता है रोल अपना, और इसकी वजह से हमारा डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है कि प्राइस डाउन होते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है।
So these are the three reasons which give the shape, downward sloping shape to the demand curve. So this was all from my side. Now I'm open for questions. Okay. Yes, class. Yes, class. Law of demand clear? Yes, ma'am. Any doubt? Anything you want to ask? Okay, Kanksha is writing yes, ma'am. I know you all have done this in your class 11th and 12th also. So it was a recapitulation, and in the next classes we will be doing the further in detail the other concepts. So law of demand, I am just recapitulating again. एक तो चलिए आप लोग बताइए, what is the relationship between price and quantity? What is the nature of relationship? Inverse. Inverse relationship, ma'am. Inverse relationship. Very good. Give me example of substitute goods. Kurkure, Teddy Mede. Ma'am, Yes. Pepsi and Coca-Cola. Yes. And what are the exceptions to law of demand? Rashi, tell me one exception. The next Richa will tell. राशि एक एक्सेप्शन आप बताइए, नेक्स्ट रिचा बताएंगी. राशि, अनम्यूट योरसेल्फ.